Hello everyone, welcome to Express. I am Kansha Agarwal, your logical reasoning faculty is with you to teach each and every tactics how to solve your logical reasoning section in the CLAT examination. So how you will work on, so in this video we will discuss about the logical reasoning part, how many question would come and how many duration you can do the whole section, and plus what is the syllabus and how the topic is being covered by us. So we'll take a topic, and in today's video I'll take a topic assumption, and in assumption level by level I'll explain you everything along with the previous year question that came in the CLAT examination. So let's have a look at the slides I've created for the CLAT examination. So why you want to join, or why you want to join law, or why you want to give the examination of law? As you all are preparing for CLAT examination, that means you want a prestigious position in NLUs and many of the national law universities, and want a prestigious position of being a lawyer with a very reputed companies or in the courtroom or right. So in the CLAT examination, what are the basic things in the logical reasoning part? So first of all, I'll tell you what is reasoning, what is logical reasoning. So this I covered over here: the introduction, the syllabus, the concept, the questions, plus the previous year question, so that you would be able to grasp what is it's all about. So let's have a look at CLAT examination. So when you give your CLAT examination, total time is 120 minutes, and in 120 minutes you need to solve 120 questions, right? So in 120 question, the part of logical reasoning section gives you 24 question, and how you are going well with these 24 question, this I'll let you know, and I will help you how you will able to manage the time according to the number of question. So when I talk about reasoning part, right? So when I talk about reasoning, so what comes to your mind? So when I say reasoning, so reasoning is all about thinking process. And thinking is something which you need, which you think always, right? It's running in your mind 24 into 7. But when we apply logic over there, that means to find an outcome, we want a result set, और anything जो हमें यहाँ पे कुछ चाहिए होता है, उसमें हम एक रिजल्ट सेट की जब हम बात करते हैं, तो रिजल्ट सेट में हम कुछ लॉजिक्स लगाते हैं. अब कोई भी आप लॉजिक कैसे लगाओगे जब उस टॉपिक के बारे में आपको क्या होगी, नॉलेज है ना. Knowledge would contain like facts, or you listen to somebody, like if you read the newspaper daily, then your state of mind enhances by the way the other is delivering the things. That means कोई भी हमारे पास एक टॉपिक है, लाइक नेपाल में इतना ज्यादा यहाँ पे डिवास्टेशन हुआ, तो नेपाल में अगर यूथ ने, जेनजीज ने, ठीक है, जेनजी ने सबके खिलाफ हो गए, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. आपने उस चीज को वहां पे पढ़ा, आपने सोचा, और क्या ये इम्पैक्टफुल होगा, नहीं होगा, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, इसके बारे में हम जब सोचते हैं, दैट मीन्स वी गेदर द नॉलेज, वी गेदर द फैक्ट्स, एंड देन वी अप्लाई एंड वर्क ऑन इफेक्टिवली कि वहां पे ये कैसे काम हो रहा है. अब यहाँ पे हम लॉजिक्स की बात करते हैं. नॉलेज हमें चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, जो हम न्यूज़पेपर. सो व्हाट आर द सोर्सेज फॉर अटेनिंग नॉलेज? सो सोर्सेज हमारे पास क्या है? हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. आई वुड रिकमेंड आप लोग द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन बिल्कुल पढ़िए. लेकिन इन केस यू आर नॉट रीडिंग इट, यू आर बिगनर, यू कैन स्टार्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया or anything newspaper you like, because the Hindu's vocabulary is somewhat typical. So if you are a pro in reading the newspaper, then you go with that part. The especially I'm talking about the editorial section. It will help you a lot with the current affairs, plus your logical reasoning part, plus many of the times some legal actions are there. It will be helping in your legal reasoning also, right? Plus, when we work on logics, okay, we listen to every sources, the person who is stating the things. So the person who is stating the things, we need to listen to them also. Then our mindset values would be increasing up. So हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, लॉजिक, और इसी का नाम है क्या, लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉयर्स के लिए स्पेशली आप सोचिए कि तर्क और वितर्क, राइट. आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो आपको वहां पे क्या चाहिए, वैलिड पॉइंट चाहिए. What is that valid point? We need words to communicate better. We need some especially the remarks or the proverbs, और बहुत सारी कुछ एड ऑन्स हम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो अगर हम फैक्ट्स के साथ उसको जोड़ते हैं, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक लगता है, एविडेंस जिसे हम कहते हैं. बट यहाँ पे हम एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बेसिकली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं.
जिससे रिलेट करके आप चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करते हैं। और चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपका जो नॉलेज बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। आप केस स्टडीज करते हैं, आप इसीलिए करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ इस केस में ऐसा हुआ था, तो इस केस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो केशव नंदा भारती केस आप लोगों ने सुना होगा। आपने देखिए कि पहले लॉयर्स भी कोर्ट भी अपना क्या करता है, अब चैलेंजेस हम करते हैं यहाँ पे, राइट। कोर्ट भी चैलेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, लोग भी कर रहे हैं, अपने ही वर्डिक्ट को चेंज कर रहे हैं। केशव नंदा का भारती केस आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। सबसे आज तक की सबसे बड़ी लॉयर्स की बेंच है वो उसी, जजेस की बेंच सॉरी, वो उसी में बैठी थी। और कैसे उसने पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क करा, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, नॉलेज बेस है। हम लोग लीगल में नहीं जा रहे हैं, ऑफ कोर्स हम लोग लॉजिकल पे ही बात कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं हमें कैसे वर्क करना है इस पे। सो लॉजिकल 24 क्वेश्चंस आर देयर। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपने यही सिलेबस जनरली देखा होगा, बट रिसेंटली जो पेपर हुआ है क्लैट 2025 का, यानी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में, इसमें एक क्वेश्चन आ गया था सिटिंग अरेंजमेंट का, एंड दैट टू बी ऑफ 5 मार्क्स। तो हम यहाँ पे 100% यहाँ पे अब नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये जो हम टॉपिक्स ले रहे हैं सिर्फ इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस और भी टॉपिक से बनाए जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक रीजनिंग में है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, राइट। पजल हो सकती है, छोटी सी पजल आपके पास आ जाए, है ना। कुछ आपके इनइक्वालिटीज हैं वो आ जाए, कुछ स्लॉग्स हैं वो आ जाए, तो हमें अपनी बेसिक रीजनिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इन केस हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, देन वी मस्ट बी एबल टू डू दैट। सो बहुत सारे टॉपिक हैं रीजनिंग में, लेकिन हाँ हमें इतना बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपने जब वो कर रखा होगा तभी आपको इजी लगेगा। सो हम इन बीच बीच में इन टॉपिक्स पे भी पूरा वर्क करेंगे, सो दैट इन केस कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रीजनिंग में कवर होता है तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। सो अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फ्रेंस, ये 5 टॉपिक्स हैं जिससे पूरी आपकी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिजाइन करे जाते हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा इसी नाम से पूछे जाएं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश में पैसेज जब आप पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस, व्हाट इज द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। अब सुटेबल टाइटल डजंट कम इन दिस कैटेगरी स्पेशली, बट दिस यू हैव टू थिंक। सो ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक के हिसाब से ही काम करना है, आपकी जनरल थिंकिंग इतनी अच्छी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको कुछ भी जो आप कर रहे हैं उसमें आप उसको अप्लाई कर पाए। सो लेट्स वर्क विद द लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट पे जब हम बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट हमारे पास क्या वर्क कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ऐसा कि हमारी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो जाए। सो लॉजिकल रीजनिंग में जब हम बात करते हैं सो हमारे पास सबसे पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमें पैसेज को कैसे पढ़ना है, बहुत केयरफुली। वी नीड टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। केयरफुली का मतलब क्या है, जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है, उसको आपको अंडरस्टैंड भी करना है। और छोटे छोटे ग्रुप्स में हम उसको पढ़ेंगे, सो दैट ब्रेक इनटू पार्ट्स, सो दैट कि हम वहां से समझ पाए कि यहाँ पे क्या थीम चल रही है, क्या चल रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्टोरी लाइन। और इस स्टोरी लाइन को आप इमेजिनेशन में अपने लेते जाएंगे, और जैसे ही आप उसको इमेजिनेशन में अपने लेते जाएंगे आपको एक पूरा आइडिया लगता जाएगा कि इस पैसेज में क्या बात करी गई है, क्या रिलेटेड है, ऑथर क्या कहना चाहता है, और उस पर वर्क करनी है, राइट। उसके बाद पहले मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स की बात करती हूँ, रीड द पैसेज केयरफुली, ब्रेक इनटू पार्ट्स। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम जब पैसेज पढ़ते हैं तो वी थिंक अकॉर्डिंगली टू अस। नो, नेवर। आपको जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं वो आपको चाहिए कि आप किसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, जिसने ये बात कही, द ऑथर हु हैज स्टेटेड द होल पैसेज, अकॉर्डिंग टू हिम or her, you need to think accordingly. Say for example, if prime minister is saying something and if you feel doesn't feel no it is not correct, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, और our finance minister Miss Nirmala Sitharaman is saying something, we immediately feel no it shouldn't be happening. But the moment we think about the part why this is happening, so reasoning is all about reason behind it, right? Why?
The question is why this is happening. So when we think about why this is happening, we got a perfect answer, and then we relax our mind and think, no, whatever she has done, she is correct. So at the whole country she is dealing, of course, so obviously there would be so many reasons behind it to take the decision. So think about a moment, about, you have to think about from the person's state of mind who is saying that thing. So this is very important. You cannot judge it, you are not there to judge it, you need to think according to that person. This is really important. Now break into parts. Why? Because as the passage is very long, this often get happens that we just didn't get the idea about how we are working on it, right? We just disconnected between, if we have read the first passage and then we are reading the second passage, we are not able to connect it properly. So the point is that if you are reading the first pages, you are making the whole image out of it, that you are working on the reasons and everything, then you would be able to connect it with the second passage also. Okay, so now after reading the passage, what the question type is. Question could be anything: strength and weakening, what is the principal cause of it, what is the reason behind it, what is the info we are doing, what is the suitable title for the passage, anything like that. So when you are working on that, so you need to work with the options also, of course. So what is the best way? See, the examination is not so tough. What we do, we make it tough. So we need to practice a lot while giving the examination. So the best way to deal with the question is to eliminate the option. This is known as method of elimination. So whenever you are feeling like this cannot be the option, definitely just eliminate it. Say for example, you have A, B, C, D, E. 5 options are there. You think C and D cannot be the option ever. So now you have a lesser options in which you can select more, and by reading again and again and connecting with the question, you would be able to find the correct answer. Now, pick the option that logically fits the given argument. Of course, you need to think logically about all the things, what is happening, what is being stated, and stick to the statement. You cannot assume anything on your own. Remember this point, stick to the statement. If something is not being said, we cannot assume until and unless it can be said. So our question and answer should be reflected within the statement that is provided to us. So this is the complete concept of logical reasoning. Plus one thing more I would like to add on, that is you always have to deal with general thinking. ओके, यू कैन नॉट बी एक्सक्लूसिव और स्पेशलाइज ऑन टू योर ओन. जैसे आप सोचते हैं वैसा ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको. जनरल थिंकिंग लेके चल रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहीं तो वो प्रॉब्लम ही होगी, उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, विदाउट विद कोई भी चीज वहां पे हो सकती है, राइट? सो आपको एक ब्रॉड माइंडसेट लेके चलना है कि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है लेकिन कहीं और तो हो सकती है. लाइक वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम आप देख रहे हैं अभी हिमाचल में, ठीक है, पूरा कितना बुरा हाल हो रखा है, राइट? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू. अब उस रेन और फ्लड और जितना हो रहा है उसको कैसे करना है, कोशिश करिए कि हम यहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें. प्लस हम यहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड की हम बात कर रहे हैं, प्लस हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पॉजिटिव माइंडसेट भी रखें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें चीज़ों को कि हाँ ऐसा होता है तो कैसा करना चाहिए. आपको नॉलेज गैदर करनी होगी. कई बार नॉलेज हमें किसी चीज़ की नहीं भी होती है लेकिन हमें पढ़ के समझ में आता है कि इस पे हमें कैसे वर्क करना है. तो दीज आर द लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट्स. लेट्स बिगिन विद अ टॉपिक. So today I'll teach you assumption. Okay. So what do you understand by assumption? How the question would be put up? And what is the way of thinking when we have a question related to assumption? It could be always be called as reason behind it. The question, maybe the assumption word they are not giving. They can ask you what could be the valid reason behind it? What could be the valid reason behind the question? So assumption means, okay, the word itself says the answer assume. मान लेना, राइट? सो व्हेन वी अज्यूम एनीथिंग, हम कोई चीज मान लेते हैं. हम दुनिया में जितना भी काम कर रहे हैं मान के ही कर रहे हैं. हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा मिलेगा, ये आपका अजम्पशन है. बाद का रिजल्ट सेट हम नहीं सोच के चलते. सो कोई भी काम करने से पहले, राइट, सो बिफोर हैंड, सो वंस यू आर डीलिंग विद एनी ऑफ द स्टेटमेंट, से फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू बाय iPhone, right? So iPhone 17,
right? So iPhone 17 है, so I won't recommend you this guys, ठीक है, but still if somebody is buying iPhone 17, what is the reason behind it, right? So you thought of the point कि yes, I need to buy it because it's a new product and I think it would be having new variety and new features, and I would be exclusive enough that I'm having iPhone 17 and nobody else is having. This is a status symbol plus when anything you try to relate it. So what you thought of, this is your assumption for doing it, to buy it. Say, so buy anything, what we assume is a positive thought, and हमने इससे पहले क्या करा, assume करा कि हाँ हम अगर आईफोन ले रहे हैं तो वो बिल्कुल सही होगा, अच्छा होगा और हमें बहुत मजा आ जाएगा इसको लेने के बाद. सो आपने पॉजिटिव थॉट सोचे, ठीक है, और आपने ये काम कर लिया. सो कोई भी काम करने से पहले आपने जो थॉट प्रोसेस करा है वो आपका क्या है, पॉजिटिव होगा, तभी आप वो काम करेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो assumption. सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो जब आप रीजन की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन कोई काम आपने जो करा है उसको पूरा करने के लिए आप वहां पे पॉजिटिव सोचेंगे, तभी यहाँ पे काम कर पाएंगे. Okay, so I hope assumption part is clear. So let's take some example of assumptions. So there is a statement, I will wake up early tomorrow to go jogging. So simple statement, I will wake up early tomorrow to go jogging. क्या हम यह कह सकते हैं कि हम जल्दी उठेंगे और कल से जॉगिंग करेंगे. अब जल्दी उठेंगे, या तो वो हेल्थ कॉन्शियस है कि उन्होंने सोच लिया नहीं अब कल से करना ही करना है. हो सकता है वेदर अच्छा हो. क्या हम ये अजम्पशन कर सकते हैं वेदर अच्छा हो और वो जॉगिंग के लिए सही हो सकता है, क्योंकि आई विल वेक अप अर्ली दैट मीन्स द पर्सन डजंट wake up early in the morning, but now he will. So now he will maybe. So this assumption would be the reflection of this statement, right? There could be more assumption. I'm just citing you examples about कि अगर ऐसा है तो आप कैसा सोचना स्टार्ट करेंगे. Next statement is the teacher did not come today, so the class is cancelled. Teacher did not come today, so the class is cancelled. So teacher नहीं आई इसलिए class cancel हो गई. Assumption क्या है? Teacher of course absent होगा, ठीक है, और वो क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. सो ये इसका assumption हो गया, that is reason. There could be more reason behind it. We are stating one or two. Now take this third statement. This coaching institute guarantees success in CLAT because it provides the best study material. So this is the statement. Of course, we are talking about excellence. So this coaching institute guarantees success in CLAT because it provides the best study material. What is the assumption? We are relating the coaching institute with the part of the content they provided, they study material they provide. ठीक है, तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसी पे स्टिक रह के आपको आंसर देना. अब इसमें 4 assumption. So good study material always ensure success. Yes, स्टडी मटेरियल पे ही तो सब कुछ है. अगर एक अच्छा मटेरियल है तो इट्स नॉट द ओनली थिंग, माइंडेड, यहाँ ओनली नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अगर आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वहाँ का फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, बहुत देर कुड बी मेनी थिंग्स, बट स्टडी मटेरियल्स एक प्रायोरिटी है कि हाँ ये अच्छा होना चाहिए, और स्टडी मटेरियल हमें इंश्योर करता है सक्सेस को. बिल्कुल. सो हमारा फर्स्ट अजम्पशन करेक्ट है. बाकी हम चेक कर लेते हैं. नो अदर. अब नो, देखिए ये चीज ध्यान रखनी, कंपैरिजन नहीं करना. आपको इस इंस्टीट्यूट की बात करी गई है तो बाकी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है. सो दिस वुड बी कैंसिल आउट. वी कैन नॉट से एनीथिंग एल्स टू अदर इंस्टीट्यूट व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग बिकॉज इट इज नॉट स्टेटेड इन द स्टेट. थर्ड इज स्टूडेंट डोंट नीड टीचर्स, ओनली बुक्स. अब this is not also said. I told you only. There is only is a word in reasoning that changes the meaning of the whole statement. So whenever a only word is used in reasoning, then you have to take care about what the statement is perfectly stating the thing. Student don't need teachers, only books. So I don't know, or I can't say anything like that because the statement doesn't support this type of thing, because they're saying best study material. That doesn't mean they don't need teachers. So this is also wrong. CLAT is an see, we are not talking about the difficulty level of the examination, whether it's easy or tough. We are dealing with the part of good study material. So all cases are eliminated. So only assumption A is valid. Okay, moving on to the next question. So now I have taken small passages so that you would be able to understand how we are going to work. So statement is given over here. The government should impose a ban on smoking in public places to protect non-smokers. Okay.
So very valid statement. I hope everybody would agree about it. The government should impose a ban on smoking in public space. तो बहुत सारी public space तो already ban है, और इन्होंने हम एक statement दिया कि government को impose करना चाहिए ban पब्लिक स्पेसेस पे, क्योंकि ताकि जो नॉन स्मोकर है, दैट मीन्स पैसिव स्मोकर्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिव स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है कि स्मोकिंग हार्म कर रही होगी, इसलिए ऐसा कहा गया, कोई चीज से प्रॉब्लम हो रही होगी तभी ये कहा गया कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। सो assumption है स्मोकिंग हार्म्स ओनली स्मोकर्स। नो, वी आर नॉट डीलिंग विद इट, बिकॉज स्मोकिंग तो स्मोकर्स को भी हार्म कर रही है और नॉन स्मोकर्स को भी कर रही है। सो बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि जो स्मोक कर रहे हैं पब्लिक स्पेस पे, जो नॉन स्मोकर ज्यादा होते हैं, तो वहां पे स्मोक जो करते हैं वो ना करें। नॉन स्मोकर्स आर affected by smoking in public spaces, बिल्कुल। ऑल स्मोकर विल स्टॉप स्मोकिंग इफ बैंड। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। अगर हम यहाँ कहते हैं कि सारे स्मोकर्स पे बैन लगाना चाहिए तो सारे लोग बंद कर देंगे, हम ये सोच के ही तो ये काम कर रहे हैं। अगर हम ये सोच लें कि हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है, मे बी लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन सारे लोग मान रहे हैं, मानेंगे, यही तो हम सोच के काम करेंगे। तो ऑल स्मोकर विल स्टॉप बैनिंग स्मोक विल स्टॉप स्मोकिंग इफ बैन, एवरीवन सपोर्ट्स द बैन। सो अब आप यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे एक से ज्यादा भी वैलिड पॉसिबल है यहाँ पे, बिल्कुल। तो अगर हम फिर से रीड करें, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ बैन ऑन स्मोकिंग पब्लिक स्पेस प्लेसेस प्रोटेक्ट नॉन स्मोकर। सो जितने स्मोकर हैं वो बंद कर देंगे, कि जितने हैं उनकी तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ पब्लिक स्पेसेस में जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम सबकी बात नहीं ले सकते हैं। स्मोकिंग हार्म्स ओनली स्मोकर, ये भी एलिमिनेट हो गया। नाउ इन बिटवीन बी एंड डी, सो व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द रीजन आई एम वर्किंग ऑन इट, क्या रीजन है इसके बीच में? नॉन स्मोकर्स अफेक्टेड बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग पब, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। अब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे तो कोई हमारा लेना देना है नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ओनली बी। सो ओनली बी वुड बी द करेक्ट assumption फॉर दिस स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन, एज वी आर गिविंग यू ऑनलाइन एजुकेशन ओनली। सो अब ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स की बात करते हैं, राइट। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर बिकॉज इट सेव्स ट्रैवल टाइम। ओके, स्टेटमेंट इज वैलिड एनफ। ओके, assumption क्या है? सेविंग टाइम improves लर्निंग क्वालिटी। ओके, ठीक है, whenever you are not 100% confident, just pause it and move to the next one also. Why? Because आपको कुछ ऑप्शन ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पे आप डेफिनेटली ये समझ जाएंगे नहीं ये नहीं है, और कुछ आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें आप आगे थोड़ा सा और उसको पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। So next is offline education doesn't save time. We are not talking about offline education, so we can't say anything about because it is not stated in the statement. Next, students don't like to travel. This we can't say. We can't say. Though it is written it save travel time, but students prefer ही नहीं करते, ऐसा नहीं कह सकते। टीचर प्रेफर करते हैं क्या? यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है क्या? टीचर प्रेफर, अगर ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे होते तो इसका मतलब ऑफलाइन कोई टीचर होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सो क्या यहाँ पे वैलिड से फर्स्ट होगा? बिल्कुल, सेविंग टाइम। सो बेसिकली हमने ऑनलाइन को बेटर उस मुद्दे पे कहा है जहाँ पे टाइम की हमारी सेविंग हो रही है, और इससे रिलेटेड अजम्पशन क्या है कि सेविंग टाइम हमारा क्या करता है? इंप्रूव करता है लर्निंग। से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा जिसमें आपको 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना लग रहा है, देन 2 घंटे आपके वहां ट्रैवलिंग में है, along with your school, along with your other preparation, so it becomes very hectic for the student वहां पे जाने के करना। Again, if you are getting same quality of education on online also, then it is more effective. So if you are honest enough with your preparation, then you can do the preparation online as well. So let's go for the next question. The next statement is the city must build more flyover to reduce traffic jam. So nowadays, who's the transport minister? Mr. Nitin Gadkari ji, right? Already बहुत flyovers पे काम हो रहा है और ताकि traffic jams improve हो पाए. But हाँ, जहाँ पे population ही बहुत ज़्यादा है, like in NCR region, वहाँ पे तो अभी time लगे. तो metros are there, but there are also be overloaded, right? So city must build more flyover to reduce traffic jam. Assumption क्या है यहाँ पे? फ्लाईओवर ऑलवेज रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। फ्लाईओवर हमेशा क्या रिड्यूस करता है? ट्रैफिक कंजेशन। इन केस यू आर नॉट एबल टू व्यू, जस्ट लिसन टू मी। फ्लाईओवर ऑलवेज रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। फ्लाईओवर हम क्यों बना रहे हैं? ट्रैफिक कंजेशन, बिल्कुल सही बात है। ट्रैफिक जैम ओनली कॉज्ड, इसीलिए कॉज होते हैं क्योंकि वहां फ्लाईओवर नहीं है, ऐसा नहीं।
ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो भी हो जाता है, कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, या बहुत सारे एक ही दिन में बहुत सारे इवेंट में सब लोगों को कहीं जाना होता है तो भी दिक्कत होती है। पीपल विल स्टॉप यूजिंग कार इफ फ्लाईओवर, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लाईओवर बिल्ड करने से यूज का इसका तो सेंसलेस हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमने यहाँ बात ही नहीं करी है, वी हम तो सिर्फ फ्लाईओवर्स को रिलेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी डेफिनेटली अ assumption for this statement, as flyover always reduce traffic congestion. Moving on to the next question. So my next question is statement. Vaccination drive should be increased because they help prevent diseases. अब सभी लोगों की वैक्सीनेशन बचपन से हो रही होंगी, राइट? वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं हम? ताकि हम क्या रहें, इम्यून रहें पहले ही किसी डिजीज के होने से, प्रिवेंट्स डिसीजेस, राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। असम्पशन क्या है? वैक्सीन आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डिजीज। अब भाई अगर वैक्सीनेशन इफेक्टिव है तभी तो कोई उसको लगवा रहा है, सो वैक्सीनेशन आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डिजीज। यस, एवरीवन इज ऑलरेडी वैक्सीन, दिस वी कैन नॉट से, सब लोग वैक्सीन है, हमें क्या पता। And how this point, how this assumption is being related to the statement, this we also cannot say. Next is diseases cannot be prevented. क्या डिजीज प्रिवेंट हो सकती हैं? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो फिर डॉक्टर्स की नीड ही नहीं होती, राइट? तो डिजीजेस हमारी प्रिवेंट होंगी बिल्कुल, क्योंकि उसका क्योर है भाई, तो डिजीजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड ऐसा तो मतलब ही नहीं है। Now people do not, we are not talking about whether they like or not like. Of course एक इंजेक्शन जब लगता है तो दर्द होता है, लेकिन वो हमारे लिए सेफ साइड है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो वैक्सीन्स आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डिजीज, यस ऑफ कोर्स। सो इस तरीके से आप देखो, स्टेटमेंट के साथ हमने assumptions को लिया है और उस पर वर्क करा है। एक मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा वर्क करते हैं। आप देखते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, कि इमेजिनेशन में क्रिएट कराती हूँ आपको, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारा चेंजेस। सबसे पहले बहुत टाइम पहले लिखा होता था सिर्फ सेल, राइट? थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप पेटीएम, यूपीआई, डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सेल आ गई अप टू, राइट, 70%, राइट? पहले आप देखते कि 50% से ज्यादा सेल कहीं नहीं होती थी, राइट? सेल 50%। अब यहाँ पे 70 कर दिया और यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिख दिया अप टू। अप टू मतलब 70 तक। अब आप गए एक शोरूम पे, वहां पे आपने देखा 5 और 10 प्रोडक्ट्स वहां पे उन्होंने बीच में सेंटर टेबल पे रख दिए और वहां पे लिख दिया 70%, बाकी सब न्यू फ्रेश स्टॉक, या 30% या 20%। सो क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है लोगों को अट्रैक्ट करने की? ऑफ कोर्स है। अगर ये अच्छी स्ट्रैटेजी है तभी लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे आके वर्क करते हैं। वर्क इन द सेंस कि यहाँ से अट्रैक्ट होते हैं और आके, अगर कोई हमारा कस्टमर शॉप तक आ जाए, यही तो हमारा assumption है कि उसको यहाँ तक लाना, सो लाने के लिए आप क्या क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं, ये भी तो assumption ही हुआ। अब यही चीज आप देखिए आजकल बहुत चल रही है, आपने रिलायंस वगैरह पे बहुत देखा होगा, सेल 70% प्लस 30% कैशबैक। अब एक वर्ड आने लगा कैशबैक, और जब से पेटीएम का इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, सो यहाँ पे कैशबैक, आप लोग प्लीज मुझे बताएंगे पेटीएम के सीईओ का क्या नाम? यस, जितने भी हमारे आप जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं या जितनी भी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, लाइक अमेजन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, गूगल, यूपीआई, उसके सीईओ कौन है? जितने भी आप ब्रांड ऊपर से नीचे तक यूज करते हैं या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उन सबके सीईओज, वो कंपनी कहाँ की है, ये इतना नॉलेज आप बिल्कुल गेन करेंगे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर करंट अफेयर्स इवन इन योर इंटरव्यूज ऑल्सो। सो सेल 70% प्लस 30% कैशबैक, इस तरीके से आपको मिलता है, तो इससे मोर अट्रैक्शन हुआ, और ज्यादा अट्रैक्टेड हुए भाई। क्यों? क्योंकि 30% कैशबैक भी आएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे छोटा सा स्टार लगा होता है, ठीक है? और ये स्टार की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि यहाँ लिखा होता है क्या, TNC, और बहुत छोटे 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 फॉन्ट साइज में वहां पे लिखा होता है कि वैलिड अप टू 1 मंथ या 30 डेज में, या फिर 5,000 की शॉपिंग करने पे ही ये कैशबैक आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या जितना कैशबैक आएगा उसको 3 महीने में आपको 3 पार्ट्स में यूटिलाइज कर, बहुत सारी कंडीशन बना देते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी कोई भी काम किसके लिए करी है? प्रॉफिट के लिए। बट वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेगी? जितना अच्छा हम क्या कर पाएंगे? अजम्पशन। इसलिए अजम्पशन लॉजिकल रीजनिंग का एक ऐसा पार्ट है जो आपकी थिंकिंग को भी ब्रॉड माइंडेडली, मतलब इट जनरेट्स योर थिंकिंग लेवल ऑल्सो, कि हाउ फार यू आर थिंकिंग एंड हाउ बेस्ट यू कैन डील विद व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन वर्किंग।
सो नेक्स्ट वील वर्क ऑन सम स्मॉल पैसेज बेस जिसमें आपकी 4 लाइन्स पे वर्क होता है. So let's read it out. Many parents are enrolling their children in online coding classes at an early age, believing it will improve their problem solving skills and future career opportunity. These skills These classes are advertised as essential for success in the modern world. So आजकल आप देख ही रहे हैं पेरेंट्स बहुत ज्यादा कीन हो गए हैं अपने बच्चों को लेके कॉन्शियस भी हो गए हैं कि और अच्छा कैसे करें. सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चल रहा है तो हम एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में भी इनको इम्पार्ट करें और आगे बढ़ाएं. सो बहुत सारे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को एनरोल करा रहे हैं ऑनलाइन कोडिंग क्लास में बहुत जल्दी अर्ली एज में. इससे बिलीव कर रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़िया होगी और फ्यूचर में उन्हें करियर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलेगी. These classes are advertised as essential for success in the modern world. और इन क्लासेस का जो एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखा होगा, आप देखते हैं वेदांतु और ऑनलाइन कोडिंग की जो वेबसाइट्स हैं उन सब में आपको देख रहा हो फ्यूचर कोडर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स, वो पूरा उसको दिखाते हैं. तो एक वर्चुअल वर्ल्ड हमारा क्रिएट हो जाता है कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतर हम यहाँ पे कर लेंगे. अब क्वेश्चन क्या है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन इन द अबव आर्ग्यूमेंट. अब देखिए ये आर्ग्यूमेंट है, इसका क्या पूछा है, अजम्पशन, और रीजन भी पूछते. तो एक आर्ग्यूमेंट किसी ने दिया, इसका अजम्पशन क्या होगा. अब देखिए कोडिंग इज द ओनली स्किल नीडेड फॉर द सक्सेस इन मॉडर्न. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड ओनली आ गया. अगर यहाँ पे स्किल लिखा होता तो ठीक हो जाता है, लेकिन केवल यही एक कोडिंग ही एक स्किल है जिससे मॉडर्न वर्ल्ड पे हम सक्सेस पा सकते हैं. नो, डेफिनेटली नॉट. नेक्स्ट, अर्ली एक्सपोजर टू कोडिंग एक्चुअली हेल्प्स इन डेवलपिंग. यस, से सिंपल लाइक आप गेम्स प्ले कर रहे हैं, सुडोको कर रहे हैं, आप वर्ड स्किल्स कर रहे हैं, आप कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका माइंडसेट बहुत जनरेटिव हो जाता है और आप मतलब एनालिटिकल वे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग वे में आप अच्छे से प्रॉपर कर पाते हैं. पेरेंट प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, नहीं, इसकी बात नहीं करी गई है, ऑनलाइन कोडिंग की बात करी गई है. और एवरी चाइल्ड एंजॉयज, ऑफ कोर्स इट एंजॉयज, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का बेसिक मतलब क्या था, कोडिंग एक्चुअली हमें यहाँ पे करनी चाहिए जिस पे वर्क कर रहे हैं. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली बी. नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. मेनी सिटीज आर इन्वेस्टिंग इन बाइसिकल शेयरिंग प्रोग्राम्स टू रिड्यूस ट्रैफिक एंड पोल्यूशन. द प्रोग्राम ऑल्सो एनकरेज सिटीजन्स टू अडॉप्ट अ हेल्थियर लाइफस्टाइल. सो बिल्कुल सही है कि ग्रीन को हमें बढ़ाना चाहिए, एनवायरनमेंट को हमें ग्रीन रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. एज आप देख रहे हैं डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डे बाय आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल कितने डिजास्टर्स हो रहे हैं. कहीं ना कहीं हम लोग की वजह से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है और फिर फाइनली वो हमें डिस्टर्ब करता ही है. तो मैंने सिटीज क्या कर रहे हैं, बाइसिकल शेयरिंग प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं जिससे ट्रैफिक रिड्यूस हो. ऑफ कोर्स ट्रैफिक रिड्यूस होगा तो पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा. प्रोग्राम ऑल्सो एनकरेज सिटीजन टू अडॉप्ट अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल. एक हेल्थियर लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं. क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. अब मैंने एक अजम्पशन से हटके यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जिसमें इन्फ्रेंस पूछ रहे हैं. सो जब हम इन्फ्रेंस की बात करते हैं, सो इन्फ्रेंस में हम बात करते हैं कि यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला. बेसिकली आप कह सकते हो हाँ भाई व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि यहाँ से आपने क्या समझा. बाइसिकल शेयरिंग रिड्यूसेस बोथ पोल्यूशन एंड प्रमोट्स हेल्थ. बिल्कुल भाई, बाइसिकल अगर आप चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी. एवरीवन प्रेफर साइकिलिंग ओवर कार. एवरीवन नहीं करते तभी तो दिक्कत है. पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ओनली कार. नो, ओनली आगे आगे केवल इसी से होता है. नो, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट बाइसिकल्स, ऐसा नहीं है. सो बेसिकली हम देखें, ओके सो हम यहाँ इन्फर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं किसकी, बाइसिकल शेयर करनी चाहिए जिससे पॉल्यूशन हो. सो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए वुड बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पैसेज. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. ओके, आई थिंक आई हैव अगेन यूज्ड दिस. Okay, it's a similar one, but somewhat different way of asking. With increasing city pollution, many people are turning towards cycling as an eco-friendly alternatives to car. Health experts say cycling regularly improve physical fitness. Therefore, the government should build more cycling tracks to encourage this habit. Which of the following is an assumption? People will use cycling tracks if they are built. Okay. Everyone already owns a. अब everyone owns a bicycle. हमें क्या पता भाई? We are not talking about that in this statement. Cars will completely disappear once track suits. अच्छा, okay. So government क्या कर रही है? Cycling track बना रही है. अब बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाएंगे, कंप्लीटली जीरो, मतलब कार होंगी नहीं, ऐसा नहीं है ना.
ओके नेक्स्ट, फिटनेस कैन बी अचीव थ्रू साइकिलिंग ओनली, अगेन एक ओनली वर्ड आ गया, ये भी क्रॉस हो गया। सो पीपल विज, अब देखिए फुटपाथ बनाए जाते हैं, वॉक पाथ बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ट्रैवलिंग पाथ बनाए जाते हैं। इस तरीके से अगर साइकिलिंग ट्रैक होगा तो उसको देखने का मन, देखने मतलब उसको साइकिल चलाने का आपका मन करेगा। जैसे आपके देखते हैं आजकल पार्क्स में जिम इक्विपमेंट्स लग गए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसका यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जिम नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द टाइम और बिकॉज ऑफ द मनी और बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन। बेटर है इफ दे कम टू पार्क, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं और खुद वहां पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंकरेजमेंट मिलता है जब वो चीज हमारे सामने आती है। तो इसका अजम्पशन क्या है भाई, अगर हम साइकिलिंग ट्रैक बना रहे हैं, मैंने आपसे कहा था अगर हम बनाए तो हम यही सोच के बनाएंगे कि लोग उसका यूज करेंगे एक बार अगर वो बन गए, डेफिनेटली द आंसर वुड बी ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मर्स से रिलेटेड। ओके, सो फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू यूज ऑर्गेनिक fertilizers instead of chemical ones. Experts argue that if shift will not only improve soil quality but also increase crop yield in the long run, making farming more sustainable. So farmer are being encouraged, farmer organic filter fertilizers का क्या मतलब है यहाँ पे? So अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें, जस्ट अ मोमेंट,